سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم نے ایک پراپر یوز آف مائنڈ کے سوا انسان میں کبھی کوئی چیز اپریشیٹ نہیں کی، مگر آپ نے کیوں کا سوال کیا ہے تو جہاں خدا نے یہ امانت عقل و شعور عطا کی وہاں ایک فیصلہ بھی سنایا، اور وہ یہ کہا کہ انہ کان ظلوما جہولا، کہ یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی، اور اس کا آسان ترین مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ کیا اور جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اور وہ قضیہ اب تک چلا آ رہا ہے کہ we were very confident to do a job, we have never been able to do that job. The reason very simple، اور وہ سادہ سی ریزن یہ ہے جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہم لیسر پرائرٹیز کو زیادہ امپورٹنٹ کر دیا ہم نے، اور ٹاپ پرائرٹی کو لیس امپورٹنس کر دیا۔ تو if we are going back, we are trying to go back۔ اس سارے اجتماع کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم پرائرٹیز میں کلیئر ہو جائیں، اور جیسے میں نے پہلے اس میں عرض کیا ہے کہ اس وقت صرف ہم نہیں، یہ 2 4 10 انسان نہیں بلکہ ٹوٹل امت جو ہے یہ ٹاپ پرائرٹی کے بارے میں کنفیوژن میں مبتلا ہے۔ They don't know whom they are worshipping and what they are worshipping۔ خدا ہمارے لیے خدا کی بجائے ایک ٹیبو ہو گیا ہے، ایک سمبل ہو گیا، اساطیر الاولین میں سے ایک داستان ہو گیا۔ اس لیے we are trying to revive the original meanings of the Quran and original teaching of the Prophet to assert back the eternal providence to justify the ways of God to men۔ باقی ابھی عمران صاحب نے ایک سوال کیا تھا، میں اس کا مختصر جملے میں جواب دوں گا کہ when you ask the purpose of the Creator, you must remember one thing کہ no creation has ever been able to question the Creator۔ اگر آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے، کیا آپ کسی بھی اپنی تخلیق کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ آپ کو کوشچن کرے؟ اگر کریٹر اور خالق کو آج تک کسی بھی مخلوق نے، کسی بھی پینٹر کی تصویر نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے مونا لیزا بنایا ہے تو اچھا بنایا ہے، اگر تو نے مجھے وان گو کی ایک ہارر کی تصویر بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے، آج تک کسی شاعر کو اس کی بری غزل نے کوسا نہیں ہے کہ تم نے اتنے برے شعر میرے بارے میں کیوں لکھے، یہ تو کوئی رائٹ نہیں ہے ہمارا۔ If he is the creator and we are the creation, at least we should know۔ اور عمران صاحب ایک بات آپ کی توجہ کے لیے، اور سب سے بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ we are ill-informed، اور ill-informed کو جب کسی بڑے کوشچن سے واسطہ پڑتا ہے تو ہمارے اندر ایک شیزوفرینک بلٹ پیدا ہوتا ہے، ہم ضدی ہیں، we want to solve that bigger question at any cost، مگر ہمارے پاس اس کی انفارمیشن اور اس کا ڈیٹا نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا جب بڑی بات اور بڑے خیالات کو ہاتھ ڈالتا ہے تو ہمارا پرابلم جو ہے یہ نیچرل صحت سے نکل کر، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ہمارے تجسس کا اور ہمارے شوق کا مدعا اگر خدا ہو تو کیا ہم تھوڑا سا انتظار کر کے مزید غور و فکر و مطالعے کے ساتھ، میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر صاحب پورے 30 سال جو ہیں انتظار میں گزارے۔ ابھی ایک اور ضمنی بات کا جواب کسی نے، میرے محترم بزرگ نے کہا تھا کہ خدا تو نظر نہیں آتا، میں کہتا ہوں ہوا بھی نظر نہیں آتی، کیا وہ فیل نہیں ہوتی؟ کیا اس کے تیز چلنے کا اور نام نہیں؟ کیا اس کی سست روی کا کوئی اور نام نہیں؟ کیا آندھی اور طوفان اس کا نام نہیں؟ اس کی ہر کیفیت کے ہمارے پاس نام ہے۔ مسٹیسزم خدا کو شاید وہ بصارت سے نہیں دیکھتا، مگر اس کی بصیرت میں اس کے تمام آثار موجود ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث رسول ہے کہ فراست مومن سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھ پہ آپ کا وہ سوال ادھار ہے کہ اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے حل ہونے والے کوشچن کریں تو شاید کوئی نہ کوئی اس کا جواب دے دے، and we'll answer back that question inshallah after lunch۔ میرا نام اشفاق ہے، میں راولپنڈی سے آیا ہوں، اتنا علم تو نہیں رکھتا، بہرحال کوئی صاحب اس کا جواب دینا چاہیں مجھے خوشی ہوگی۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا اسلام اور الف لام میم میں کیا
जॉइंट चीज़ है, बराबर कुछ चीज़ इसमें निकलती है ऐसी कोई बात, इस्लाम है क्या, इसकी वजाहत चाहूँगा मैं। नंबर 2 कि हम कलाम होना, मेरे जहन के मुताबिक जो मैं समझता हूँ, हम कलाम होना बात करने से, तो मैं ये चाहूँगा पूछना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हम कलाम होते थे अल्लाह ताला से, तो क्या अल्लाह ताला का कोई स्ट्रक्चर है, उसको क्या शेप देंगे आप? जी, कोई साहब इस बारे में अपनी राय देना चाहते हैं? इस्लाम क्या है? बड़ा बुनियादी सवाल है यार ये। धन्यवाद जी। साहब क्या आप ही बता दें। कोई साहब आप? इस्लाम का जो भी बोल है सबमिशन है। इस्लाम से सबमिशन हमारे इस्लाम है टोटल सबमिशन टू ऑलमाइटी अल्लाह, दैट इज इस्लाम। पूरी तरह अल्लाह के सामने सर्वगो हो जाए, इंसान झुक जाए, सबमिट कर ले। और बाकी रही मसला जो अल्लाह लाम और मीम, तो इसके बेशुमार लोगों देखें इस्लाहात में, आपको टर्मिनोलॉजी में जाने की जरूरत नहीं है, ना यहाँ वक्त है बयान करने का। मोहम्मद से मुराद ये है कि वो इंसान जिसने अपने आप को पूरी तरह अल्लाह के सामने संदगो कर दिया, सरेंडर कर दिया, और इसका नाम इस्लाम है। और यही पसंदीदा अल्लाह ताला की तरफ से दीन है। ये हमारे बुजुर्ग ने, हमारे दोस्त ने इस्लाम के बारे में पूछा है, तो इस्लाम का लुग़वी माना सलामती है। तो हदीस पाक में भी आता है, बुखारी की हदीस है, मन सालिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, अल मुस्लिमो मन सालिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। इस्लाम ये है कि जिस आदमी के हाथ, जिसकी जुबान से मुसलमान बच रहे, उसको कोई तकलीफ, कोई गजन न पहुंचे, और ये इस्लाम है। चूंकि इसका मादा ही सलामती है और मुसलमान से किसी को तकलीफ है ही नहीं, सलामती सलामती है। तो इसलिए इसी को कुरान ने फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम ही है। और फिर हजूर अलैहिस्सलाम की आखिरी वही जो उतरी है, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज के दिन मैंने अपनी नेमतें तुम पे मुकम्मल कर दी है और तुम्हारे लिए मैंने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है। यही पर दूसरी बात मूसा अलैहिस्सलाम की बातचीत की बिलाल आप मूसा अलैहिस्सलाम की बात, तो वो बात यह है जी कि मूसा अलैहिस्सलाम को कोई जिस्म नजर नहीं आ रहा, आवाज एक दख्त से आ रही है, सिर्फ आवाज आ रही है, कोई सूरत, कोई मुजस्सम शक्ल सामने नहीं थी, ये एक आवाज थी। और ये अल्लाह ताला की हिकमत है, तंजीह की एक सूरत है। मोहतरम, आवाज किस चीज से निकलती है? आवाज किस चीज से निकलती है? बेजान चीज से तो आवाज नहीं निकलती। बात यह है कि अल्लाह ताला बेजान नहीं है जी, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, जानदार आवाज अल्लाह की आ रही है, लेकिन जिस्म नजर नहीं आ रहा। मैं वो कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम था, जबकि जबराइल अलैहिस्सलाम लैलतुल कद्र पे जाकर रुक एक मकाम पे आके, उन्होंने कहा इससे आगे मैं भी नहीं जा सकता, तो हुजूर के पास वहाँ पहुंचे, हम कलाम हुए, वो कैसे हुए? बात यह है कि एक सुनी सुनाई बात है, ये मौलवी साहब बैठे हैं, मुझे वो हदीस बताएं जहाँ लिखा हुआ है कि लैलतुल कद्र वहां जाके रुक गए, कौन कहते हैं? बात यह है कि सुनी सुनाई बात को बंदा करें, सिहतुल मुंतहा हेडक्वार्टर जिबरील इस्लाम का। ठीक है, सॉरी जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक तो है। वहाँ पे नहीं रुके, तो किसने कहा कि रुक के जाके? बात यह है कि ये आवाज एक बार है, एक आवाज आ रही है और ये आवाज वो क्रिएटर दे रहा है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, आवाज किस चीज से आती है? आवाज आ मैं रही बोल रहा हूँ, आवाज तो ये हमारे पास आवाज इससे भी आ रही है, आपके सामने ये बात खड़ा है, इसमें से आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, बांस ने भी आवाज दी है, पत्थर ने भी आवाज दी है। अगर आप मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे। मैं समझ गया, आप बुनियादी तौर पर, मेरा ख्याल है, मैं तो ये गुस्ताखी समझूंगा कि मुश्किल ये सबसे बड़ी कि जब हम अपने मजहब को प्लीड करते हैं ना, तो तसब का ज्यादा शिकार होते हैं। मैं कहता हूँ गैर मुस्लिम आपसे सवाल करता है, फिर तो आपके पास मकबूल जवाब होना चाहिए, सेटिस्फाई हो जाए, क्या जो कुछ आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मुसलमान को मुसलमानों पर तबलीग करता है तो वो तो कोई मायने, वो तो मुंह पे मैं भी हाँ कर दूंगा, तो दिल में तो मैं सोचूंगा पता नहीं क्या कहानी है कि हम तो आधे के पाबंद हैं। हमारे नजदीक जब तक जबान और गर्दन वगैरह ना हो तो आवाज नहीं आ सकती। अल्लाह तआला इसका पाबंद नहीं है। ये आपको अल्लाह की हैसियत और इंसान की हैसियत में फर्क होना चाहिए। मैं इसमें कभी ये बात ये है, अल्लाह की इस कायनात में पत्थर ने बातें की हैं। खुद नबी की हदीस है कि नबी फरमाया कि मुझे अब तक वो पत्थर याद है जो मुझे बचपन में इस्लाम किया करता था। ये भूल गया, वो तूने हनाना
मस्जिद नबी अब भी मौजूद है जिससे हमें आवाज आती थी, या भूल जाते हैं। बहुत एक और मिसाल देता हूँ आपको मैं कि आम तौर पे जिस माशरे से हम या जिस सोसाइटी से या जिस क्लास से हम तलक रखते हैं ना, वो तकरीबन काफी सारे हम लोग जाहिल हैं, मेरे समेत स्पेशली मैं। अब एक आदमी बात बुजुर्ग मिलते हैं, कोई मुझे मिले होंगे, आपको भी मिले होंगे कि मुझे ये हुक्म हुआ कि ये फलां ड्यूटी आप करनी है, आपने कश्मीर का मसला हल करा। ये बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ, ये दरवेश लोग अपने आप को करवाते हैं, सूफी करवाते हैं या पीर करवाते हैं, ये कहते हैं जी हमें ये हुक्म था कि ड्यूटी करनी है जी, लाहौर जाके आपने फलां जगह पे। मैं ये कहता हूँ कौन हुक्म उनको देता है और किस तरह देता है कि तुम जाओ वहाँ? ख्वाब आती है उनको, फरिश्ते कहते हैं, जिन्नात कहते हैं, कौन सी चीजों ने कहती है जाओ वहाँ? बात यह है कि ये सारी दास्तान वगैरह की सब किससे झूठे हैं। नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, कोई नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, अगर झूठे हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। अच्छा, बात यह है कि जो साहब इस सवाल को मेटाफिजिकली समझ सकते हैं, प्रोसीव कर सकते हैं और इसका मेटाफिजिकल आंसर कर सकते हैं, वो अटेम्प्ट करें। ये सवाल बड़ा क्लियर है, सीधा है, सारों के दिल में ये सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन सवाल को हिट करें। This question is metaphysics. If you deal with Islam, it doesn't deal with metaphysics. Metaphysics is behind the approach of Islam. It's not a subject, mind. It's not metaphysics. आप उसको एक ही जाविये से जवाब दें। Metaphysics, the question arises when you introduce metaphysics into Islam. In Islam, it's very simple to be understood by everybody. Whereas metaphysics is a question of philosophy. So many philosophers have pondered over their lives and they vanished. चौधरी साहब मेरे ख्याल में जो सवाल पूछना चाह रहे हैं उन्होंने 3 मिनटों में कहा जाएगा कि फॉर्म ऑफ गॉड है क्या। इसके ऊपर If you talk by the terms of the metaphysics, you will confuse the people. If you talk in terms of Islam, then you will have the guidance towards Islam and the Quran. Doesn't matter. point is we are still confused with your answer. You just, pardon me, you just introduced metaphysics into Islam. Metaphysics and Islam are too controversial. Don't answer him anyway. आपके ख्याल में जिस तरह आप उस सवाल को डायरेक्ट हिट कर सकते हैं आप कर दें, सीधा हिट करें ताकि उनकी भी तसल्ली और यही कह रहा था ना, आपने मेटाफिजिक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। हम सारी मेटाफिजिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ऑफ दिस हाउस। हुजूर छोड़ दें फिलहाल, आप उस सवाल पर डायरेक्ट आ जाए। मैं ये कहता हूँ, अब मैं जवाब ये देता हूँ, ये जो लोग क्लेम करते हैं कि मुझे ऊपर से इशारा हुआ है, फलां के ये हो रहा है, फलां पार्टी पर जा रहा है, फलां पंप पर आर 50 हियर, ये सवाल ही नहीं है, किसी के पास तो इशारा नहीं आते। प्रोफेसर ये सवाल नहीं है, सवाल क्या है? आवाज ये किया था डिजिटल वजूद को आपने देखा नहीं, आप इस पे मेरी बात सुन रहे। मैं सवाल जो उन्होंने किया ना शहाब साहब ने, इट इज वेरी सिंपल। सवाल ये था लाइक शहाब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं फलां बुजुर्ग से मिला तो उनका मेरी ड्यूटी फलां जगह पे लगी। इसका सवाल यही था कि वो उनको कैसे कौन क्या होती है, किस सूरत में आता है, अब शेरा होती है। हज़रात मोहतरम, हुनैन की जंग में हुजूर गिरामी मर्तबत खड़े थे, फिर हजीमत हुई, मुसलमान भाग निकले, फिर खुदा के रसूल ने ऐलान किया कि मैं बिला शक व शुबा नबी हूँ, मैं अब्दुल मुतलब का बेटा हूँ। मुसलमान पलटे, खूब जंग हुई। जब खूब जंग हुई तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अब भट्टी खूब गर्म है, तो मैं तो इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता जी, मगर मैं ये चाहूंगा, मेरी अर्जी है कि बाज़ औक़ात टेक्सचुअल रेफरेंस जो है वो ज्यादा मुफीद होती है। पहला जो सवाल था हजरत मूसा से हम कलामी का, उसको बड़ी दूर से ट्रेस करना होगा कि खुदावंद करीम ने अपने मुख्तलिफ आसार पर मुख्तलिफ शहादतें तख्लीक की, और कभी मलाइका के जरिए वो शहादत तख्लीक की, कभी जिन्नात के जरिए तख्लीक की, फिर अपने वजूद गिरामी मर्तबत तक आए तो ये लोगों को बताया कि मैं कलाम करता हूँ। फिर जब अपने आप को मुकम्मल शहादत में लाना था तो शब महराज में हुजूर गिरामी मर्तबत ने अपनी ज़ाती शहादत मुहैया की अल्लाह ताला ने, और पैगंबर को शाहिद कहा, यानी नजरी शहादत देने वाला और अकली शहादत देने वाला खुदा के वजूद पर। अब मसला ये है कि व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, ये बड़ा मसला है। तो हजरात मोहतरम, बात ये है कि फॉर्म ऑफ गॉड में हमें इतना बेपनाह डाटा चाहिए, हम जो अपनी